So good morning, everyone. Today we are going to study about the memory unit and some information about the notepad. It's for typing, okay? And we will start the MS Paint also, okay, for drawing. So we can do some designing thing with the help of MS Paint. MS Paint की help से हम लोग क्या कर सकते हैं? Designing कर सकते हैं, okay? Painting draw कर सकते हैं और बहुत सारा काम हम इस पे कर सकते हैं. तो हम उसके बारे में आज स्टडी करेंगे, okay? We will study about all these things, okay? So I'm going to start with the memory unit first. So let me open your file. If you remember last time we studied about the memory, okay? That what is memory? I told you memory is a space where you can store the information. हम store इसको store कर सकते हैं, ठीक है? That space is called the memory. But how we can calculate the memory? हम memory को कैसे calculate करेंगे? How we can measure? हम memory को कैसे measure करेंगे? We are going to learn about that topic today. And one more thing मैंने आपको starting में कुछ बताया था. If you remember, नॉट इन दैट फ्रॉम द कंप्यूटर बुक ना, जो आपको मैंने पिक्चर शेयर किया था उसमें आपको मेंशन किया था अबाउट 0 and 1, ओके, अबाउट 0 and 1, अबाउट द बाइनरी नंबर, ओके. तो वो भी आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है, ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सो मेमोरी यूनिट, ओके. व्हाट इज द मेमोरी यूनिट? मेमोरी यूनिट होता क्या है एक्चुअली? सपोज यू आर गोइंग टू मार्केट, ओके. अगर आप मार्केट में जाते हो एंड गोइंग टू परचेज सम पोटैटो, so how will you ask to the shopkeeper? Can you write in the chat option? Anyone? अगर आप मार्केट में पोटैटो खरीदने जाओगे तो आप शॉपकीपर को जाके क्या बोलोगे कि आपको क्या चाहिए और कितना चाहिए? कैसे बोलोगे? How will you tell them quantity, कि कितना क्वांटिटी चाहिए? क्या बोलते हैं? प्लीज राइट इन द चैट ऑप्शन. ये आलू कितना है? ओके, कैन आई गेट 1 kilo पोटैटो? गुड. 1 kilo, 2 kilo, इट्स मीन you will have to use this word kilo, okay? Half kg, 2 kg, okay, like on maybe 250 gram, whatever how much you need, you have to tell them, okay? So this is the unit of measurement. ये measurement होता है. And if you're going to purchase some milk, then how will you ask? Kilo or liter? Liter. So it's mean if we are going to calculate the that liquid thing, so we have to measure in the liter. And if there's a weight like potato and another or vegetable and other things, so you have to purchase in the kg. The distance can be measured in a meter, kilometer, centimeter, okay, mile. Okay, so same, if we are going to calculate, if we are going to discuss about the unit of computer, okay, memory unit, memory measurement, okay, unit of measurement, sorry. यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है. तो हम लोगों को डिस्कस करना है कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है. सो वेन एवर यू टाइप ए सिंगल की फ्रॉम द कीबोर्ड, जब भी आप कीबोर्ड से कोई भी एक बटन प्रेस करते हो, ठीक है, वेन एवर यू प्रेस ए सिंगल की फ्रॉम द कीबोर्ड, आप जब कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करते हो तो वो आपने सपोज क्या टाइप ए, यू आर टाइपिंग ए फ्रॉम द कीबोर्ड, बट आप खुद सोचो, कैन इज इट पॉसिबल टू ट्रांसफर ए अल्फाबेट थ्रू द वायर? कीबोर्ड से सीपीयू के बीच में क्या कनेक्टेड होता है? वायर, बिकॉज इट्स अ पेरिफेरल डिवाइस, राइट? एंड यू आर टाइपिंग दैट ए इन अ कीबोर्ड, आप कीबोर्ड में टाइप करते हो और वो ए कहां चला जाता है? कंप्यूटर के मेमोरी में, थ्रू द वायर. सो इज इट पॉसिबल दैट that characters, that letters, numbers can pass through the wire? Please write in the chat option, all of you. Please write in the chat option your answer. Is it possible to pass characters, numbers through the keyboard wire? क्या वायर में से कैरेक्टर्स पास हो सकता है, वर्ड्स पास हो सकता है? नो, नहीं हो सकता.
तो वायर में से क्या पास होता है, कोई बताएगा? वायर में से क्या पास हो सकता है, कोई बताएगा? इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट आंसर. Only electricity can pass through the wire. Okay, on the electricity can pass through the wire. Wire में से सिर्फ electricity pass होगा. Okay, it's mean जब मैं whenever I press A from the keyboard, so it's mean some current will pass through the wire. कुछ करंट पास होगा कहाँ से, कीबोर्ड के वायर से कहाँ जाएगा, कंप्यूटर के मेमोरी तक. अब वो करंट से उसको पता चल जाएगा कंप्यूटर मेमोरी को कि व्हाट आई वांट्स टू टाइप, कि मैं ए टाइप करना चाहता हूँ, बी टाइप करना चाहता हूँ. बिकॉज कंप्यूटर डजंट नो माय लैंग्वेज, कंप्यूटर को मेरा लैंग्वेज नहीं पता है. ओके, कंप्यूटर को मेरा लैंग्वेज नहीं पता है. कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज पता है. कंप्यूटर नोज ओनली द बाइनरी नंबर्स. बाइनरी नंबर्स को पता है. बाइनरी नंबर में ओनली क्या होता है, 0 एंड 1. 0 एंड 1. बाइनरी नंबर में क्या होता है, 0 एंड 1. ठीक है. इससे पहले मैं एक और चीज बताता हूं, जब इलेक्ट्रिसिटी की बात आ गई है, इलेक्ट्रिसिटी दो तरह का होता है. ठीक है, एक होता है एसी करंट और एक होता है डीसी करंट. एक होता है एसी करंट और एक होता है डीसी करंट. एसी एंड डीसी करंट. टाइप ऑफ करंट, दो तरह का करंट होता है, एक होता है एसी और एक होता है डीसी. ठीक है, एक होता है एसी और एक होता है डीसी. एसी करंट क्या क्या सामान होता है, इलेक्ट्रिक, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक. और डीसी से क्या होता है, डीसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक. इट्स मीन जो भी बिजली का सामान इलेक्ट्रिक करंट से चलता है, दैट इज कॉल्ड एसी. और जो बिजली का सामान डीसी करंट से चलता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक. दैट्स व्हाई कंप्यूटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक. इसीलिए कंप्यूटर को हम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं, नॉट इलेक्ट्रिक. अगर कहीं पे एग्जाम में ये क्वेश्चन लिखा होगा कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, सो रॉन्ग आंसर. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिक नहीं है. ठीक है. और हमारे कंप्यूटर में एक पार्ट होता है एसएमपीएस. एस सॉरी एसएमपीएस. ओके, स्विच मोड पावर सप्लाई. स्विच मोड पावर सप्लाई. इसका काम क्या होता है, मैं आपको जरा दिखा देता हूँ क्या होता है. दिस एसएमपीएस. इसका काम होता है एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना. द वर्क ऑफ दिस एसएमपीएस इज द कन्वर्ट द एसी करंट टू डीसी करंट. ठीक है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. आवर कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड कंप्यूटर नीड ओनली द डीसी करंट, मींस द डायरेक्ट करंट. ओके, नॉट अल्टरनेटिव करंट. सो कंप्यूटर नीड्स डीसी करंट, बट इन आवर होम, हमारे घर में जो कनेक्शन आता है गवर्नमेंट की तरफ से, दैट इज द एसी करंट, दैट इज द एसी करंट. बट हमारे कंप्यूटर को क्या चाहिए, डीसी करंट. सो एसएमपीएस का काम क्या होता है, द वर्क ऑफ द एसएमपीएस इज ओनली द कन्वर्ट द एसी करंट टू द डीसी करंट. एसी करंट को डीसी कन्वर्ट में कन्वर्ट करना. एंड द अनदर थिंग, इट विल मैनेज द पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो. ये पावर को मैनेज भी करता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी मैनेज करता है. ठीक है. लाइक how much current needs keyboard, how much current needs mouse, how much current needs monitor, how much needs current the hard disk. कंप्यूटर का हर एक पार्ट को कितना करंट चाहिए, वो सारा किससे मॉनिटर होता है, विद द हेल्प ऑफ एसएमपीएस. ये डिसाइड करता है. विद द हेल्प ऑफ दिस एसएमपीएस वी गिव करंट टू द कंप्यूटर पार्ट्स. ओके, अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट. बिकॉज इफ वी गिव मैक्सिमम करंट, सो वो पार्ट क्या हो जाएगा, बर्न हो सकता है, जल जा सकता है, खराब हो सकता है. और अगर हम कम करंट देंगे तो वो काम नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल, if a labor he is working, if he can carry only 50 kg load, और अगर हम उसको कितना लोड दे देंगे, 100 kg लोड दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा. है ना. तो सेम कंप्यूटर के अंदर भी होता है, जिस पार्ट को जितना करंट सप्लाई चाहिए होता है सिर्फ उतना ही प्रोवाइड करते हैं. इफ वी गिव मोर करंट तो पार्ट जल जाता है. ठीक है, खराब हो सकता है, बर्न हो सकता है. तो वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट कौन करता है, दिस एसएम पार्ट. सो आई थिंक इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इफ इज इट क्लियर, so please write in the chat option. If is it clear, so please write in the chat option. Yes, it is clear.
Okay, good. Fatima, it's not clear? Okay, I'm going to repeat again. See, our computer is an electronic device, okay, and it's need DC current. इसको क्या करंट चाहिए होता है? डीसी करंट. इट्स रिक्वायर्ड डीसी करंट. बट हमारा घर में जो गवर्नमेंट की तरफ से जो करंट आता है इलेक्ट्रिसिटी होता है, दैट इज द एसी. सो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है? एस एम्पियर्स. देयर इज एस एम्पियर्स, इट कन्वर्ट द एसी करंट टू डीसी. ठीक है, एक तो होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और सेकंड क्या करेगा? सेकंड, पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो, बिकॉज कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, हार्ड डिस्क, हर एक पार्ट को, ईच डिवाइस नीड्स डिफरेंट वोल्टेज ऑफ करंट. सो वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? हमारा एस एम्पियर्स. ठीक है, सो नाउ इज इट क्लियर? फातिमा कुरैशी, इज इट क्लियर टू यू नाउ? Is it clear to all of you? Yeah, good, thank you. So now I think this SMPS option is clear to you. What is AC current, what is DC, and why computer is called electronic, it is also clear. आप सबको पता चल गया कि कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक क्यों बोलते हैं, इलेक्ट्रिक क्यों नहीं बोलते हैं. ठीक है, ये तो हमारा हो गया काम करंट का. ठीक है, अब बात आती है करंट की. ठीक है, अब बात आती है करंट की. जब भी हम कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करेंगे, व्हेनेवर यू प्रेस एनी की फ्रॉम द कीबोर्ड, तो क्या होगा? कीबोर्ड का वायर में से क्या होगा? एक करंट पास होगा. एंड करंट कैसे पास होगा? नंबर ऑफ 8 टाइम्स, नंबर ऑफ 8 टाइम्स करंट विल ऑन एंड ऑफ. करंट क्या होगा? ऑन और ऑफ होगा. नंबर ऑफ 8 टाइम्स. दिस इज सीरीज फॉर ईच अल्फाबेट. हर एक वर्क के लिए, हर एक काम के लिए कुछ ना कुछ सीरीज होता है. ठीक है, एक कोड वर्ड होता है. यू कैन से लाइक ए कोड वर्ड फॉर ईच अल्फाबेट. देयर इज अ कोड वर्ड. लाइक सपोज फर्स्ट लाइक बाइनरी नंबर फॉर ए, बाइनरी नंबर ऑफ द कैपिटल ए. बाइनरी नंबर क्या है? कैपिटल ए का क्या होगा? 0 1 0 1 1 0 1. ओके, इट्स इन पहले करंट ऑफ रहेगा, सेकेंड स्टेप में ऑन हो जाएगा, फिर ऑफ हो जाएगा, फिर ऑन होगा, फिर ऑन होगा, फिर ऑफ ऑफ ऑन. मतलब एक सीरीज चलेगा. फॉर ईच अल्फाबेट देयर इज अ सीरीज. फॉर ईच अल्फाबेट देयर इज अ सीरीज. फॉर स्मॉल, फॉर कैपिटल बी मे बी सम डिफरेंट. फॉर कैपिटल बी के लिए दूसरा होगा, स्मॉल ए के लिए दूसरा होगा. ठीक है, हर एक का अलग अलग होता है सीरीज, सीक्वेंस. ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस सीक्वेंस कंप्यूटर को समझ में आता है कि हम क्या बोलना चाहते हैं. हम कैपिटल ए लिखना चाहते हैं या स्मॉल ए लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, कंप्यूटर को समझ में आ जाता है. सो दिस इज कॉल्ड द बाइनरी नंबर्स. एंड दिस द दिस नंबर ऑफ 8 टाइम्स, नंबर ऑफ 8 टाइम, इट इज ऑल्सो बिट्स. इट इज ऑल्सो बिट्स. अभी बताता हूँ क्या होता है. देखो, आप कभी भी कोई भी कीबोर्ड का बटन प्रेस करोगे, नंबर ऑफ 8 टाइम्स विल करंट एंड ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ. ठीक है, 0 एंड 1. 0 का मतलब होता है, 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन, 1 मीन्स ऑन. ठीक है, 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन. ये हमारा होता है. तो नंबर ऑफ 8 टाइम्स करंट ऑन ऑफ होगा. एंड फॉर ईच अल्फाबेट दिस डिफरेंट सीरीज. सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट सीरीज होता है. जितनी बार करंट ऑन ऑफ होगा तो कंप्यूटर का मेमोरी को समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं. ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इफ इज इट क्लियर टिल नाउ, सो प्लीज राइट यस, इट्स क्लियर. अगर यहां तक सबको समझ में आ गया तो प्लीज राइट ओके, यस क्लियर, सबको समझ में आ गया. ओके, नाउ सी, अगर आप कीबोर्ड का कोई भी बटन प्रेस करते हो, one character, okay, whenever you press a character from the keyboard, आप कोई भी बटन कीबोर्ड का प्रेस करोगे, it is equal to 1 byte. It is equal to 1 byte, and it equals to also 8 bits. It is equals to 8 bits. Okay, one character, आप कीबोर्ड का कोई भी एक बटन प्रेस करोगे, ये किसके बराबर होता है? 1 बाइट स्पेस. कितना? 1 बाइट. इट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. इट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. इट्स मीन 1 कैरेक्टर इक्वल्स टू 1 बाइट एंड इट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स. ठीक है, ये 8 बिट्स के बराबर होता है. ठीक है, ये तो हमारा हो गया. फिर जब आप 1024 टाइम कैरेक्टर लिखोगे,
ये क्या हो जाएगा 1024 बाइट हो जाएगा, ठीक है। 1024 कैरेक्टर इक्वल्स टू 1024 बाइट, सॉरी गलत हो गया स्पेलिंग, बाइट हो जाएगा, ठीक है। एंड इट इज इक्वल्स टू 1 केबी। ये किसके बराबर हो जाता है 1 केबी। 1 कैरेक्टर इक्वल्स टू 1 बाइट, इट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। एंड 1024 कैरेक्टर जब हो जाएगा ये हो जाएगा टू 1 केबी, ओके। एंड व्हेन इट इक्वल्स टू 1024 केबी, so it is equal to 1 MB, okay, 1024 MB equals to 1 GB. This all are unit of measurement. KB means kilobyte, ठीक है, MB means megabyte, ठीक है। These are unit of measurement. और भी इंक्रीज होता है, तो चलो देखते हैं क्या क्या होता है। 1 GB, 1 GB equals to 1 TB. TB is called the terabyte. मैं भी इसका डेफिनेशन लिख दूंगा, sorry, not 1, 1024, okay. And 1024 TB equals to 1 PB. And 1024 PB equals to 1 EB. 1024 EB equals to 1 ZB. 1024 ZB equals to 1 YB. It's kilobyte. Megabyte. It's gigabyte. It's terabyte. It's petabyte. Exabyte. Sorry. Zettabyte. और ये हो गया लास्ट में योटाबाइट। It's yottabyte. It is clear to all of you? Okay, 1 character equals to 1 byte equals to 8 bits, 1024 characters to 1024 byte, and 1 KB equals to 1 KB. 1024 KB equals to 1 MB, 1024 MB equals to 1 GB, 1024 GB equals to 1 TB, and 1024 TB equals to 1 PB, petabyte, and it's equals to 1024 PB equals to 1 EB, exabyte, and 1024 EB equals to 1 ZB, zettabyte, and 1024 ZB equals to 1 yottabyte. अभी मार्केट में जो आप if you're going to purchase hard disk, so you can see there's a TB available, okay, terabyte, 1 TB hard disk, 2 TB hard disk available. अभी हमने मार्केट में PB EB ये सब नहीं देखा है बिकॉज इट्स ये बहुत ज्यादा कैपेसिटी का है, ठीक है। ये सब जो सर्वर्स वगैरह में यूज होता है, आपको डेली अपने कंप्यूटर के यूज के लिए चाहिए, होम पर्पस के लिए, तो टीबी तक आपको मार्केट में मिलेगा। बाकी पीबी ईबी जेडबी वाईबी ये सब सर्वर्स के लिए यूज होगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, और ये सारा आप लोग याद कर लेना, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर, ओके। आपको एग्जाम में भी हेल्प करेगा, बाकी आपको ये सारा इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कंप्यूटर के बारे में। तो आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू ये वाला, ठीक है। नाउ लेट मी प्रूफ ऑल्सो कि हाँ 1 कैरेक्टर टू 1 बाइट, ये आपको प्रूफ भी करके देखते हैं, चलो ठीक है। मैं एक सिंपली नोटपैड का फाइल लेता हूँ। आई एम गोइंग टू टेक वन एग्जांपल ऑफ नोटपैड फाइल। सो हाउ टू स्टार्ट द नोटपैड, प्रेस विंडो एंड आर की फ्रॉम द कीबोर्ड, रन ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे लिखो नोटपैड, सॉरी यहाँ पे टाइप करना है नोटपैड, टाइप करना है हमको NOTEPAD, नोटपैड लिखा, ओपन किया।
मैं यहाँ पे सिर्फ एक अल्फाबेट टाइप करूंगा। क्या टाइप किया मैंने, एक स्मॉल ए टाइप कर दिया और फाइल पे जाके मैं इसको सेव करता हूँ। ओके, आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल, गोइंग टू सेव दिस फाइल ऑन डेस्कटॉप। इसको मैं लिख देता हूँ फाइल साइज टेस्ट। ठीक है, इस फाइल को मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया। आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल ऑन डेस्कटॉप विद द नेम फाइल साइज टेस्ट। ओके, गोइंग टू सेव दिस फाइल, इसको बंद कर देते हैं। वेयर इज माय फाइल, ये रहा। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक ऑन दिस फाइल। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। एंड going to show more option, or I can see simply click on the properties. Can you tell me what is written here? Size, क्या लिखा है इसके ऊपर, किसी को दिखाई दे रहा है? प्लीज कोई बताएगा? Write in the chat option. Please tell what is written here. 1 byte. Why it's 1 byte? Because I write there only one character. That's why the file size is only the 1 byte. Okay. अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो, और इसको फाइल को सेव कर दूं, इसको क्लोज किया, फाइल को राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज चेक किया, हाउ मच साइज, आप कोई बताएगा इसका साइज क्या है फाइल का? प्लीज टेल what is the size now? 0 byte. Why 0 byte? Because there's no character, nothing is there in this file, so that's why the file size is 0. Okay, so now I'm going to write some letters. 1 2 3 4. I'm going to count space also. Space भी हो गया 5 times 6 7 8 9 10. 10 alphabets are there. 10 times मैंने कीबोर्ड प्रेस किया, even there's a 2 times space also. ठीक है, there's 8 alphabets and 2 space. उसको सेव किया, कितना स्पेस होना चाहिए? File size should be 10 byte. File size should be 10 byte. Good. अब एक काम करते हैं, चलो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, कॉपी किया, नाउ गोइंग टू पेस्ट 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 हो गया। ठीक है, सेव कर लेते हैं। नाउ गोइंग टू चेक, इज इट रियली 1000 सॉरी 100 और नॉट? यस, इट्स 100, सो इट्स मीन 100 बाइट्स। तो मैं काम करता हूं, सेलेक्ट ऑल बाय कंट्रोल ए, कॉपी किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, पेस्ट 100 200 300 400 500 6 7 8 9 10। मैंने 10 टाइम्स कॉपी कर दिया, सो नाउ इट्स 1000, नाउ इट्स 1000 कैरेक्टर। सो नाउ लेट मी चेक द साइज आल्सो, इज दिस फाइल, yes it's 1000 characters, so 1000 byte. Okay, and if you are going to save this file, so that there should be at least 4 KB space. अगर आप इसको कहीं पे सेव करोगे तो वहां पे 4 KB का स्पेस होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, आप मार्केट से कोई कोल्ड ड्रिंक परचेस करके लाते हो, तो आप देखते हो 1 लीटर का 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक होता है, तो उसके अंदर थोड़ा सा स्पेस एम्प्टी भी होता है। इट्स मीन इट नीड सम स्पेस आल्सो, ताकि वो इजीली उसको अंदर मूव कर सके। तो ऐसे हमारे फाइल के अंदर भी थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। इवन योर मोबाइल आल्सो, अगर आपका मोबाइल पूरा फुल हो जाएगा, मेमोरी फुल हो जाएगा, तो इट विल स्टॉप वर्किंग। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस उसके अंदर होना चाहिए। इट्स 1000 हो गया टाइम। नाउ आई एम गोइंग टू प्रेस कीवर्ड 24 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नो मैटर कि आप कोई सिंबल्स भी प्रेस कर रहे हो। 20 हो गया, 21 22 23 24, 24 टाइम मैंने प्रेस कर दिया। नाउ इट्स मीन देयर इज 1024 कैरेक्टर्स। ओके, 1024 कैरेक्टर्स। सो 1024 कैरेक्टर्स का साइज कितना हो जाएगा? 1024 कैरेक्टर्स का मतलब हो गया 1 KB। क्या हो जाएगा? 1 KB। अगर आप इसमें से एक भी कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा? मैं ऐसे एक कम कर देता हूं, एक मैंने कम कर दिया एंड सेव किया। नाउ चेक द प्रॉपर्टीज। नाउ इट्स 1023 बाइट, 1023 बाइट। ठीक है, सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इफ इज इट क्लियर हाउ टू चेक मेमोरी, अगर आपको कैसे प्रूव करना है तो आप कर सकते हो सब। यस, गुड, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया, परफेक्ट। सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आप सबको समझ में आ गया है, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट नोटपैड एंड गोइंग टू टेल यू वन थिंग। सब लोगों को पता है नोटपैड कैसे ओपन करना होता है? मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। विंडो प्रेस करो एंड आर प्रेस करो कीबोर्ड से, रन ऑप्शन आ जाएगा। ओके, एंड देन टाइप है नोटपैड एंड क्लिक ओके एंड राइट डाउन दिस सेंटेंस ऑल ऑफ यू। राइट डाउन दिस सेंटेंस ऑल ऑफ यू। ए क्विक
brown fox jumps over the lazy dog. All of you have to do practice for this sentence every day in your computer at least 5 to 10 minutes. एवरी डे 5 से 10 मिनट आप लोग ये वाला सेंटेंस का प्रैक्टिस करोगे बार बार. सेम यू हैव टू टाइप हियर. ये वाला सेंटेंस बार बार रिपीट करोगे. व्हाई? बिकॉज इन दिस सेंटेंस फ्रॉम ए टू जेड ऑल अल्फाबेट्स आर देयर. ए टू जेड ऑल अल्फाबेट्स आर देयर. इसके अंदर सारे अल्फाबेट्स अवेलेबल हैं. ओके, इन दिस सेंटेंस ए टू जेड ऑल अल्फाबेट्स आर देयर. Write down this sentence, all of you, or take a screenshot. Write down this sentence or take a screenshot. A quick brown fox jumps over the lazy dog. Okay, और remove the a. Quick brown fox कर दो क्योंकि a तो ऑलरेडी यहाँ पे आ रखा है. सबने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? Those who don't have computers, so I cannot say anything, but for typing, if you are doing typing on computer, so you have to do practice for this sentence. जिसके पास कंप्यूटर है प्लीज इसका प्रैक्टिस करना. आप लोग ये वाला सेंटेंस का प्रैक्टिस करना. क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग. बिकॉज इन दिस सेंटेंस ए टू जेड ऑल अल्फाबेट्स आर देयर. सारे अल्फाबेट्स हैं. अगर आप इसका डेली प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा कीबोर्ड में कौन सा की कहां पर है. तो अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस करते होगे, सो मे बी आफ्टर 10 days, 20 days और 30 minutes, आफ्टर 1 month, यू नो नीड टू सी टुवर्ड्स द कीबोर्ड. आप बिना कीबोर्ड को देखे, विदाउट सी द कीबोर्ड यू कैन टाइपिंग. आप विदाउट कीबोर्ड को देखे आप टाइपिंग कर सकते हो अगर आप इस सेंटेंस का डेली प्रैक्टिस करोगे. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? If is it clear, so please write in the chat option yes, it's clear. Okay, good. ठीक है, थैंक यू. सो नाउ गोइंग टू स्टार्ट पेंट ऑल्सो. ओके, पेंट स्टार्ट करते हैं. ये टाइपिंग आप लोग करते रहना. नाउ गोइंग टू स्टार्ट द पेंट. PAINT पेंट. सर्च में आप लिखोगे पेंट. दिस MS पेंट विल ओपन. इस तरह से आएगा. इसको आप बड़ा कर लो यहाँ से पेज को. ओके, दिस अ पेंट फॉर ड्राइंग. सेम यू डू ड्राइंग ऑन योर नोटबुक. आप अपने नोटबुक पे ड्राइंग करते हो. सो अगर आप लोग ड्राइंग करते हो तो सबसे पहला चीज आपको क्या चाहिए? राइट इन द चैट ऑप्शन. अगर आप कोई पेंटिंग करते हो, कोई ड्राइंग करते हो, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? व्हाट यू नीड एट द फर्स्ट? पेन. ओके, पेन चाहिए. और किसी को कुछ चाहिए पेन के अलावा? सबसे पहले तो आपको पेपर चाहिए ना. टाइपिंग आप कहाँ पे ड्राइंग करोगे? सबसे पहले आपको क्या चाहिए? पेपर. सो पेपर हमारे पास क्या है? द व्हाइट एरिया इज आवर एरिया. ओके, जहाँ पे हमको ड्राइंग करना, पेंटिंग करना. दिस आवर यू कैन से आवर पेपर साइज. ओके, फाइल जहाँ पे हम ड्राइंग करेंगे. उसके बाद हमको क्या चाहिए? पेंसिल. द सेकंड थिंग वी नीड द पेंसिल. सो दिस अ पेंसिल. ये क्या है? पेंसिल का आइकन है. एंड दिस द इरेजर. चलो पेंसिल ले लेते हैं और पेंसिल से कुछ लाइन ड्रॉ करके देखते हैं. यस, वी कैन ड्रॉ लाइंस. ओके, गुड. एंड इरेजर भी हमारे पास. वी कैन यूज इरेजर ऑल्सो. सॉरी, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है. ओपन करते हैं फिर से. कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसके अंदर. एक मिनट देखना पड़ेगा. देखता हूँ. हाँ,
कुछ एरर आ रहा है इसमें सॉफ्टवेयर के अंदर, सो विल कंटिन्यू दिस पेन क्लास टुमारो। ओके, बाकी सबको समझ में आया जितना भी हमने स्टडी किया? ओके फाइन, ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब ऑल्सो। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है जो भी क्लास का, तो आप यूट्यूब से देख सकते हो उसका रिवीजन के लिए, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दैट वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ओके। जो भी वीडियोस होगा वो सब आप लोग शेयर कर देना, ठीक है, ओके। एंड जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल बटन ऑल्सो, सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑल्सो फॉर द न्यू वीडियोस। अगर आप बेल बटन प्रेस नहीं करोगे तो आपको न्यू क्लासेस का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग जब भी कीबोर्ड में टाइपिंग करोगे, आपका फिंगर जो होना चाहिए कीबोर्ड पे इस तरह से होना चाहिए, ASDF लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड का होना चाहिए JKL सेमीकोलन, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो आपका टाइपिंग स्पीड होगा। और जो भी की सबसे नियर बाई होगा, लाइक इफ यू टू प्रेस Q तो ये वाला फिंगर से प्रेस करोगे, W प्रेस करना तो ये वाला प्रेस से करो, फिंगर से प्रेस करोगे। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही फिंगर से पूरा टाइपिंग कर रहे हो, उससे आपका क्या होगा, आफ्टर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स यू विल गेट टायर्ड और आप स्टॉप टाइपिंग स्टॉप कर दोगे, ठीक है। तो सारा फिंगर्स यूज करो टाइपिंग में, इसका टाइपिंग स्पीड आपका फास्ट हो जाएगा। थैंक यू।